So I told everyone that today we will discuss. Mhm. एक minute. I think this would be this. Hmm. Okay. Mm-hmm. Yeah. पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट है ना, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परा पराक्षर। ठीक है, परा पराक्षर मीन्स पराक्षर। पोस्ट स्क्रिप्ट वी लर्न ना। पोस्ट स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने 10 प्रकार के पोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट 10 पोस्ट स्क्रिप्ट है ना। सो वी हैव टू पोस्ट स्क्रिप्ट विच केम आफ्टर द पोस्ट स्क्रिप्ट है ना। तो जो भी परा अक्षर के बाद, जो 10 प्रकार के परा अक्षर हैं, उनके बाद कुछ शब्दों में हम वो दो प्रकार के जो पोस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, वी हैड टू पोस्ट स्क्रिप्ट्स है ना। इन सम लेटर्स, इन सम वर्ड्स वी हैव टू ऐड दोज पोस्ट स्क्रिप्ट्स है ना। विच वन आर दोज? सो प्लीज ट्राई टू प्रोनाउंस दिस वन है ना। ओके, कैन एनीवन able to read these two letters, two words, alphabets, sorry. The and sa. Yes. So we have the and sa as post script है ना. So we discussed about prescripts. Prescripts means which came before the main alphabet which we use to start our pronunciation है ना. And postscripts means which came after the main alphabets which we use to pronounce, which we use to start pronunciation है ना. And postscript is which came after postscript है ना. तो ये दिमाग में रखना है कि पोस्टस्क्रिप्ट मतलब परा परा अक्षर, उसको तिब्बतन में कहते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं तिब्बतन में भी लिख दूं तो तिब्बतन में एक ऐसा वर्ड आता है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे लाइन थोड़ा इधर से चला गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेसजुग है ना। जेसजुग, वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, दीज वर्ड्स जेसजुग। जेस, द मीनिंग ऑफ जेस इज आफ्टर है ना। जुग मीन्स ओके सॉरी, नॉट जेसजुग, sorry, जेसजुग मीन्स पोस्टस्क्रिप्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रीस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट ना। सो पोस्टस्क्रिप्ट इज ये। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कैन एनीवन प्रोनाउंस दिस वन प्लीज? Yangchuk. Yangjuk. Yangchuk, yes, Yangchuk. So the meaning of yang is, I already told in earlier classes, the meaning of yang is again है ना। मैंने बताया था, I told that the meaning of yang came in different ways, just like to also है ना। nga yang, if I will say nga yang, that means me too है ना। And over here Yangchuk, yeah, over here yang means again. Again means we added postscript after the main alphabet. Again we add two alphabets to make words in Tibetan है ना, to make Tibetan words. That means again we have to add two alphabets to complete the word. Okay, so that means Yangjuk है ना. Juk means enter है ना. Yeah. Okay, so we will discuss about these two words, and mostly these days in scriptures, in textbooks,
whatever you will find in modern days ना, we didn't find the use of the, है ना. तो जैसे अभी मैं हिंदी में बताऊं तो हमारे अभी आजकल के जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, नए ग्रंथ जो नए विद्वान हुए हैं, उन्होंने जब ग्रंथों की रचना की है ना, तो उसमें हमें द का प्रयोग नहीं मिलता है. बहुत ही कम, पुराने ग्रंथों में भी बहुत ही कम मिलता था. सो आई एम सेइंग दैट we don't have we don't use the as a yangju as a postscript these days, है ना. uh, but in earlier periods, है ना, just like ancient times, when grammar came, when script came, after that most of scholars used to write scriptures and most commentaries, है ना. In those texts we can see, we had some uh, words which indicates the as a postscript, है ना. But right now we will we can see most of use sa, है ना. Mostly sa is used to make some words, just like yesterday I wrote some word. Yesterday means in our earlier class ना. तो ये जो word है ना, because we don't have sa in our prescript, है ना. So sa will become a main alphabet which we have to start our pronunciation. And after that, this one is postscript, है ना. After that, sa become postscript, है ना. So be aware of these things, है ना. तो जैसे we have a word sang, just like we have only this word, है ना. This word, the pronunciation of this word is also sang, है ना. इसका pronunciation भी हम sang ही करेंगे, ठीक है. And also the pronunciation of this word is also sang, ठीक है. लास्ट में यहाँ पे स ऐड होगा, बट वी डोंट प्रोनाउंस दिस स. सो प्रोनाउंसिएशन इज ओनली संग, है ना. ठीक है. सो द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, है ना. दिस वन इज फॉर क्लीनिंग, मतलब संग मीन्स जैसे वी यूज टू कॉल बुद्धा इन तिबेटन सांगे, है ना. सांग्यस, सांग्यस मीन्स he cleaned his all desires, negative things, and from himself, we can say himself, but उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, जितनी भी बुरी चीजें थी, है ना. द नेगेटिव थिंग्स एंड desire and all the, yeah, we can say all the negative things he cleared in himself, है ना. That's why, Sir, is it translation of word arhat हाँ, we can in say Sanskrit? arhat. Arhat. Yes, yes, yes. Sange is एक मिनट नहीं, अरहत का वर्ड जो होता है वो अरिहत है ना. जब उसको हम वो करेंगे तो एक वर्ड आता है हमारा जैसे अरिहत, है ना. तो अरि बिकम एनिमी, है ना. ठीक है. Yes. जब एंड हत मीन्स खत्म करना, तो वी कैन से लाइक दैट हमारी जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं उनको हमने वो क्या कहते हैं, अपना एनिमी माना है, और उसको एनिमी समझ के उसको हमने हटा दिया, खत्म कर दिया ना. We can remove all the negative things in ourselves. But for that, for arhat, we had another word, another translation, uh, which wordly translation, है ना. Just like ari is enemy. For ari we use in Tibetan dra, and hat to kill, to finish, है ना. So Okay. I mean, I guess Doa Chompa or something like yes, that. yes, 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 yes. Yes. Dra chompa. Yes. Done. Yes. So these kind, just like for the, we had some word, है ना, just like in ancient times. First I will remove these things ना. Sa is clear, I hope sa is clear ना. So I will show the example of the
postscript, है ना. After that we will move to compound words from today, है ना. That those are also very important to make sentences and to make words, है ना. तो जैसे there is a word. Okay, this one is compound conjunction letter, so I will not show this one, है ना. There is a word kuna the, है ना. इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट स्क्रिप्चर्स, है ना, जब आप लोग जो पुराने ग्रंथ मिलते हैं तिब्बतन के, है ना, इफ यू गाइस find some old texts related to Tibetan community, related to Buddhism in Tibetan, है ना. In those texts we will find words just like this, kuna the kund, है ना, kun, है ना. The pronunciation of the, we don't pronunciation postscript, so we will pronounce this one kun, है ना. Sorry, I am writing again in Tibetan. So the pronunciation of this word is kun, है ना. ठीक है. But the meaning of kun is all, है ना. तो by using the postscripts, the after scholars, है ना, मतलब जो बाद के विद्वान हुए थे, scholars from these days, है ना, they just like realize that we don't have any word because the meaning of kuna the is also all, है ना. So we don't have use of this word for making indication that this word is different from another from this letter, this word, है ना. So they remove this one. So these days we will not find the use of the postscript, है ना, mostly. And so we will have in almost there are so many words which we are using, where we are using postscript, na. Okay. So I hope till here everything is clear, na. If you have any doubt, please ask, huh? So we will move for our compound letters, okay? Okay. So just like first I will show how we have the compound letters, है ना. Just like in Devanagari, we used to pronounce Sanyukta Vyanjana, है ना. Sanyukta Vyanjan, we have three words, three letters in Devanagari. Ksha, Tra, Gya, है ना. So for making Ksha, है ना, Ksha, we have to add Ka plus Murdanya Sha, है ना. After that, this become a Ksha. Just like that, we have Ta plus Ra, है ना. After that, Tra is complete, है ना. For Gya, for making Gya, we have J plus Nya, है ना. So in Tibetan, we have also compound letters just like this, है ना. But we used to pronounce those compound letters in different ways. For example, I will show you one alphabet, one word, है ना. Just like we have this kind of structure, है ना. So this one is a compound letter of K and R, ठीक है. So according to the rule of Devanagari, we will pronounce this one Kra, है ना. But in Tibetan, we don't use this as Kra, we use this one as Tra, है ना. So we will discuss these
letters also we have just like, again I will show you another, just like this one is just like हम जो if we are writing प्र, है ना, तो उसके लिए तिब्बतन में हम लोग यूं लिखते हैं, प के नीचे रेफ लगाना, ठीक है, प्र, बट वी प्रोनाउंस दिस वन ऑल्सो ट्र, है ना। बट ये जो है र है यहाँ पे, इन दिस वर्ड वी हैव प हलंत प्लस र कंप्लीट, है ना। बट ऑल्सो वी हैव अनदर वर्ड, जैसे हम लिखते हैं वर्षा, ठीक है, ओवर हियर र इज हलंत, है ना, यहाँ पे र आधा रहता है, तो उसके लिए भी तिब्बतन में रखते हैं, जैसे हम लोगों का एक वर्ड रहता है र ऊपर आता है, वी हैव ऑन हेड र, है ना। इफ वी विल ट्राइंग टू ट्रांसक्रिप्ट transliteration, if we are working as a translation as a transliterator, है ना, at that time if we had this word varsha, है ना, for varsha we have to make va, ठीक है, तो यहाँ पे we have to add र on the top, and after that we have to make sh, and we have akar, है ना, akar, for akar we have to add hachung. This one is the transliteration of varsha. So that sure will be the mirror image, not that Yes, sure. yes, It is yes, yes, sure. yes. सॉरी, हाँ, मिरर इमेज होगा यहाँ पे। हाँ, मैं ये जस्ट इसके लिए बता रहा था कि आपका वी हैव टू यूज, हाउ टू यूज र फॉर ट्रांसलिटेशन, बट ना इन तिब्बतन जस्ट लाइक ओवर हियर, इसको हम क्या पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देवनागरी, है ना। तो इफ वी ऐड बिफोर दिस, है ना, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम अर्क, है ना। So how to write Arya? Is it आर्य, just wait. half R and year or Yes, I will show you in next slide. Just wait. Just like for Arya, we have to draw a, है ना, and add hachung over here. Hachung means if we are adding hachung in every word, in any word, है ना, that means hachung become akar, है ना, क्योंकि in Tibetan we don't have akars, so we have to add hachung, है ना। After adding hachung, we have to draw, ये जो है ये रा, जो रेफ हम लोग ये यूज करते हैं ना, हलंत रा, ठीक है, उसके लिए प्रयोग होता है, दिस वन इंडिकेट्स र, देवनागरी र विच वन इज हाफ हलंत, है ना। तो यहीं पे हम लोग जोड़ेंगे र के नीचे से, यहाँ पे य ड्रॉ करेंगे, ये आपका आर्य, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम, ओके जस्ट वेट, आ र वाई ए, है ना, आर्य, सॉरी ये वाई है, तो इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे एज आर्य, है ना। बट इन तिब्बतन इफ वी हैव द साइन ऑफ रा ऑन द हेड, for I'm talking about Tibetan pronunciation, है ना, at that time we don't pronounce r, just like I show here, I जैसे हमने का के ऊपर रा लगाया, we add r over on the top of k, है ना, but we pronounce this one as similar the word k, तो ये जिसके ऊपर भी लगा रहेगा तिब्बतन में, तो हम इसका उच्चारण करेंगे ही नहीं। इन एनी वर्ड इफ वी फाउंड दिस लेटर ऑन द टॉप ऑफ एनी वर्ड, है ना, वी डोंट प्रोनाउंस दिस वन, वी ओनली प्रोनाउंस द दिस वर्ड, ओके। सो ये बातें याद दिमाग में रखना, ये अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ना अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे पहले हम लोग जो वी हैड 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स विच केम ऑन द हेड, है ना, on the top, and we had 4 kinds of
अल्फाबेट्स विच केम अंडर, मतलब जो वर्ड के नीचे आता, एट द बॉटम साइड, ठीक है। So we will discuss about those things also, those things today. I think someone asking some question. हाँ, यहाँ अब देखिए आप ना, ये आर्य जो है आपको तिब्बतन ग्रंथ में देखने को मिलेगा, कई तिब्बतन ग्रंथों में मिलेगा, ठीक है। बट जब आप लिखते हो, है ना, इफ यू आर राइटिंग आर्य, आप ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे, ये डिपेंड करता है इस पे, है ना। जब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कर्मा, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ना, क लिखते हैं हम लोग, एंड र, एंड मेक म। कर्मा आपने ऐसे ही देखा होगा, क्या नाम है इनका, अथर्व जी, है ना, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे देखिए, इससे क्लियर हो जाता है कि र जो मतलब हाफ र है वो ऊपर आता है, ठीक है। अब जो ऐसे अभी आपने जो यहाँ पे लिख के भेजा था ना, आ र उसके नीचे यकार, वो क्या है, जब एंशियंट टाइम में जब ट्रांसक्रिप्शंस हो रहे थे, जब वो देवनागरी, व्हेन दे यूज टू ट्रांसलेट द देवनागरी टेक्स्ट, है ना, रिलेटेड टू बुद्धिज्म, विच आर इन संस्कृत, विच आर इन पाली, है ना, व्हेन दे यूज टू, बट दिस वर्ड इज बिकम रिलेटेड टू देवनागरी संस्कृत, है ना। व्हेन दे यूज टू ट्रांसलेट in Tibet, है ना, there are no, they don't have scholars of Sanskrit as much as in we have in India, है ना। तो उस समय ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, बट राइट नाउ मोस्टली पीपल यूज टू एड र ऑन द हेड। अब ये क्या है कि अभी दिस वर्ड जो अभी आपने ऐसे लिखा था ना, ये करके यहाँ पे, ये तो रहेगा ही, हचुंग रहेगा आपका, अगर ये नहीं रहेगा तो आकार आ की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है। वी हैव टू ऐड हचुंग फॉर आ, आफ्टर दैट र एंड दिस वर्ड, है ना। ये जो साइन है, जो मैंने ऐसे करके साइन बनाया, ये या का साइन है, ठीक है। दिस वन इज द साइन ऑफ य, है ना। बट यहाँ पे जो र दिख रहा है हमको, है ना, इसका उच्चारण क्या है, हलंत में होता है, ठीक है। तो आजकल के विद्वान, ये आपको सिर्फ पुराने स्क्रिप्चर्स में या पुराने टेक्स्ट में मिलेगा, जैसे इफ यू आर लुकिंग, इफ यू आर रीडिंग कंग्यूर तेंग्यूर्स, है ना, एंड other old scripts related to Ayurveda, related to other regions also, other क्या बोलते हैं, दूसरे अदर प्लेसेस ऑल्सो ना। तो उसमें आपको ये मिलेगा अगर वो पुराना है। बट राइट नाउ इफ पीपल आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम देवनागरी एंड दे यूज, इफ दे वांट टू ट्रांसलेट आर्य, दे विल यूज अनदर वर्ड, जो मैंने इससे पहले दिखाया था ये वाला, वो आ लिखेंगे ना, आ के नीचे ये लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लगाएंगे। ये जो है आपका आर्य कंप्लीट करता है, मतलब अगर उसके हिसाब से देखा जाए, बिकॉज ऑफ कर्मा, है ना। क्योंकि हर चीज का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, अलग अलग उच्चारण किया जाता है। राइट नाउ वी हैव स्कॉलर्स एज वेल एज स्कॉलर्स who knows Tibetan as Tibetan very good, and who knows Sanskrit as well good, है ना। So if they are translating from Devanagari to Tibetan, they will use this word, this alphabet. हाँ, ये है कि हमारे जो प्राचीन स्कॉलर्स हैं वो इस वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो सम वो भी आता है कि ये हमारे उससे आया हुआ, पूर्वजों से आया हुआ है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, है ना, वी हैव टू यूज दिस काइंड, दिस वन, ठीक है। तो ये था। सो वी विल स्टार्ट, हाउ मेनी, क्या कहते हैं, कंपाउंड लेटर्स वी हैव इन तिब्बतन, है ना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, ये है, मैं आपको बता, दिस वन आर विच केम बॉटम, है ना, इसको हम लोग कहते हैं दोकचन कहते हैं तिब्बतन में, बट राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग द नेम। ओके, आई विल राइट, वो ज्यादा वो नहीं होगा, आप लोग भी समझ जाएंगे।
डॉक्चिन, ठीक है। वेट, मैं इन, हाँ यहाँ पे मेरे को वो दिखाना होगा ना स्ट्रक्चर बना के। ओके ओके, डॉक्चिन, ठीक है। जस्ट वेट। Just wait for. Okay, so कहाँ गया मेरा, अच्छा जूम। हम्म। ओके, सो हमारे पास चार प्रकार के वर्ड्स है, तो वी हैव फोर काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच वी हैव टू ऐड एट द बॉटम ऑफ द मेन अल्फाबेट विच वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रोनाउंसिएशन, है ना। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट जितनी भी ये चीजें हैं, मतलब जो डॉक्चिन में है ना, डॉक्चिन मीन्स विच केम एट द बॉटम ऑफ द मेन वर्ड, हाँ, वो सिर्फ मेन अल्फाबेट के साथ ही आएगा, आगे पीछे नहीं आता, ठीक है। हाँ, if we trying to transliterate from Devanagari, at that time we can have in any places, but in Tibetan, in the pronunciation of Tibetan, we will add Dokchen with the main alphabet, okay? And we have four kinds of Dokchen, four kinds of alphabets which came at the bottom. मैं यहाँ पे bottom लिख देता हूँ। बॉटम से तो अंडर अच्छा लगेगा ना। Which came under the, okay, main alphabet, ठीक है। सो वी हैव फोर काइंड्स ऑफ, है ना। फर्स्ट वन इज वी हैव य, है ना। सेकंड वन इज वी हैव र, एंड ओके, वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ डॉक्चन, फोर काइंड्स ऑफ गोचन, है ना, तीन काइंड के होते हैं। और थर्ड वन इज व, ओके, है ना। तो यही है, इनको लिखने का तरीका। मैं पहले आप लोगों को साइन दिखा देता हूँ। आई विल शो सम साइंस हाउ टू राइट दीज थिंग्स, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज लाइन्स, है ना। सो द साइन ऑफ य, है ना, साइन ऑफ य का साइन जो है ये है। र के लिए हम द साइन ऑफ र इज दिस वन, एंड फॉर व साइन ऑफ व इज स्मॉल ट्राइंगल शेप, है ना। These three things we we can see, we can find in Tibetan words. Okay, so now I will show you how we have to add these things with the letters. Okay, और डॉक्चिन, एक मिनट, हाँ। हम्म, ओके। सो वी हैव सेवन काइंड्स ऑफ यताक, है ना। ये जो यताक है हमारे पास सात प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो सात प्रकार के कैसे रहते हैं वो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो जस्ट लाइक मैं आई यूजली ट्राई टू से दैट वी हैव whenever we will try to write Tibetan, है ना, as a basic student, है ना, we have to use three lines, okay, just like these three lines, है ना। So first letter with ya,
है ना, वी हैव इन तिब्बतन क. So for k we have to draw a structure of k, है ना. So यहाँ तक लाया, यहाँ से पूरा नीचे नहीं ले जाना. वी डोंट हैव टू गो स्ट्रेट, वी हैव टू स्टॉप ओवर हियर एंड एड दिस शेप लाइक दिस, है ना. ये आपका यहाँ पे टच होना चाहिए, अभी टच नहीं हुआ. आई विल ड्रॉ अगेन, है ना. जस्ट लाइक फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कर्व, ठीक है. एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू ऐड दिस वन, ठीक है. दिस वन विल प्रोनाउंस एज क्या, क्या, ठीक है. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. या ओके. मैं कल आपको, अथर्व जी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे फिर मेरे को अभी डाउट आया, है ना. आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो. जब मेरा ये डाउट मैं क्लियर कर लूँ एक बार ना, तो उसके बाद मैं आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे रहता है, ठीक है. बट वी विल प्रोनाउंस दिस वन क्या. नहीं नहीं, हाँ डाउट नहीं है, सॉरी. मैं फिर वो हलंत वाले उसमें कंफ्यूज हो गया था. ओके, सेम है यहाँ पे भी. देखिए ओवर हियर, है ना, वी हैव the pronunciation of ka is very small, है ना, क्या. and the pronunciation of ya is larger than ka, है ना. तो इसको अगर हम लोग देवनागरी के पैटर्न में लिखेंगे तो क हलंत और या जोड़ा, बट इन तिब्बतन वी डोंट हैव हलंत वर्ड्स, है ना. बट जब हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक दैट दिस वर्ड विल pronounce smaller than the after word, then the word became which came the आफ्टर दिस, है ना. तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग इस तरह करेंगे, ठीक है. क्या, इसको एक बार लिखने का तरीका फिर से देख लीजिए. जस्ट लाइक ओवर हियर वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी. ओके, वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ कर्व, है ना. इसको यहां तक लाके फ्रॉम हियर वी हैव टू मेड दिस कर्व, है ना. तो ये यहाँ पे जो है वी हैव टू मेक गैप्स ओवर हेयर सेम, है ना. जितना यहाँ मतलब इन दोनों, इनके बीच में ओवर हेयर वी हैव टू मेक गैप्स सेम गैप, है ना. ठीक है, क के साथ एक ये जोड़ा तो क्या हो गया, ठीक है, ओवर हेयर. आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज ख, है ना. तो नेक्स्ट इज ख, ठीक है. ख इज वेरी, मतलब जो ख में जब हम ऐड करते हैं तो वो बहुत ही अलग तरीके से होता है. जैसे वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, 3 लाइन में ही करना है जब आप लोग स्टार्ट करोगे. तो हमने जब ख का स्ट्रक्चर बनाया था तो पहले एक स्ट्रेट लाइन लिया था, यहाँ से थोड़ा सा कर्व, उस कर्व को यहाँ तक ले गए, ऊपर वाले को यहाँ जोड़ा, एंड फर्स्ट राइट कंप्लीट ख, है ना. एंड यह विल एड हियर जस्ट लाइक दिस वन बिकम ख, है ना. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ख ना, कंप्लीट ख, ठीक है. एंड एड य ओवर हियर, ये हमारा क्या हो जाता है. तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम ख, ख, ठीक है. जैसे हम लोग लिखते हैं व्याख्या, है ना, व्याख्या में ये रहेगा, क्या रहेगा. तो अगर जब हम लोग ट्रांसलिट्रेशन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला ख जुड़ेगा, है ना. और आकार की मात्रा है, देखिए ओवर हियर आकार, है ना. सो फॉर आकार वी हैव टू ऐड, जैसे पहले हमने ख लिखा, ख में हमने ये यकार, वी ऐड यकार ओवर हियर, एंड वी हैड आकार ना. फॉर दैट वी हैव टू ऐड हचुंग ओवर हियर, है ना. जी, जो हचुंग हम लोग ये लिखते हैं, फिर से मैं आप लोगों को क्लियर, द हचुंग, दिस वन, है ना. दिस वन वी हैव टू मेक स्मॉलर
एंड ऐड ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर ना? Yeah, clear, sir. जी। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज Yes, sir. Yes, sir. ग, है ना, ग के साथ आता है, ठीक है। सो अगेन वी हैव टू ऐड, ओके, अब मैं, हाँ, ये ख हो गया ना, ये तो, सॉरी सॉरी। ओके, सो वी हैव टू ऐड विद ग, है ना। द रूल, जो ग के साथ ऐड करना, वो जो रूल है वो सेम का के रूल को फॉलो करेगा, है ना। जस्ट लाइक टेक 3 लाइन्स, और यहाँ से जो है हम लोग ये लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये खींचा, यहाँ पे हमने ग का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और इस लाइन को हम लोगों ने, वी हैड टू टेक ओवर हियर, है ना, पूरा नीचे तक नहीं ले जाना, वी डोंट हैव टू गो टिल डाउन, वी हैव टू स्टॉप ओवर हियर एंड मेक कर्व फ्रॉम हियर। दिस वन इज गया। ये जो है यहाँ पे इसके साथ टच रहेगा, मतलब मेरा अभी ये टच पैड, आई एम यूजिंग द टच पैड, बट वी हैव टू टच दिस वन ओवर हियर, है ना। सो दिस वन इज गया। Just like first we have to make a structure of G. Okay. We made a structure of G. And from here we have to add Ya. Gya. The pronunciation of this one is Gya. Just like in Devanagari we used to write Yogya. है ना? Just like in the English also Gya. G-Y-A. है ना? Gya. तो ये जो है ऐसे लिखा जाता है। सो हम लोगों ने 3 सीख ली, ठीक है। यहां तक देखिए, टिल हियर ना एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। वी आर राइटिंग क, है ना, एंड एडिंग हियर वी प्रोनाउंस दिस वन क्या, है ना। उसके बाद हमने ख के साथ वी ऐड दिस साइन ऑफ यकार विद ख एंड वी प्रोनाउंस दैट वन इज ख्या, ठीक है। एंड ऑल्सो वी ऐड यकार विद ग एंड वी प्रोनाउंस ग्या। But after this we have some other words, है ना, some other alphabets। अभी 3 हो गए ना, अब 4 रहते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं वो देखिए, है ना। Just like we have to add with p, है ना। But when we used to add with p, the pronunciation will change। जैसे ये हमने 3 लाइनें ली, ठीक है। तो प लिखने का तरीका, वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ प, तो वी नो वी डोंट, प विल कम इन द upper 2 line, ठीक है। And this one is the complete p, Tibetan p, है ना। So we have to add yakar over here, ठीक है। Again I will show, है ना, we have to make a structure of p, है ना, and we have to add yakar over here, ठीक है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन नॉर्मली इफ वी फॉलो द अर्लियर रूल्स, जैसे क के साथ यकार जोड़ा, वी ऐड द यकार विद क, है ना, एट दैट टाइम वी यूज टू प्रोनाउंस क्या। बट ओवर हियर इसका प्रोनाउंसिएशन हमको ऐसा होना चाहिए ना, प्य। बट दिस वन इज अकॉर्डिंग टू देवनागरी रूल, बट इन तिब्बतन वी यूज टू प्रोनाउंस दिस वन च, च, ठीक है। तो प का यूज, प का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फ, है ना। फ ऐसे ही लिखते ना तिब्बतन में, जैसे ये किया, ये किया, ये किया, यहां से इसको जोड़ा और यहां से इसको काट दिया, है ना। दिस वन इज द अल्फाबेट फ, ठीक है। अब इंग्लिश में PHA लिखते हैं, FA का प्रोनाउंसिएशन भी चलिए फ होता है, बट PHA यूज करते हैं जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब जब डायक्रिटिकल लैंग्वेज में यूज करेंगे तो PHA यूज होता है, ठीक है। सो
विद दैट है ना, द प्रोनाउंसिएशन विल बिकम, ये ऐसे हो जाएगा, देखिए, वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ फ एंड ऐड यकार, है ना, एंड द प्रोनाउंसिएशन विल बिकम, अच्छा, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाएगा, इसको कर देंगे हम लोग, ओके, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई विल राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फयता, तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा हमारा छ, ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन विल बिकम, दिस वन इज अकॉर्डिंग टू तिब्बतन प्रोनाउंसिएशन, ओके, तिब्बतन, इफ वी saw in Tibetan words, these kinds of alphabets, if we saw in Tibetan words, Tibetan textbooks, है ना, at that time we have to pronounce as cha. If we are reading a transcription book, है ना, transcripted book, at that time we have to use, we have to pronounce as phya, ठीक है, तो वो अगर हम लोगों का ट्रांसलिटरेटेड या ट्रांसक्रिप्टेड जो बुक आता है, उस समय हम लोग इसका उच्चारण फ्या के उससे ही करेंगे, प्या के उससे ही करेंगे, ठीक है, बट इन तिब्बतन हम लोग इसका उच्चारण, जैसे पा के साथ यकार होगा तो उसका चा, फा के साथ यकार होगा तो उसका हम लोग छ यूज करते हैं, ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज ब, है ना, सो लाइक अगेन इन 3 लाइन्स, है ना, ये मैं 3 लाइन्स क्यों लिख रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितने शेप में लिखा जाए ना, आई एम यूजिंग द 3 लाइन्स बिकॉज you can get the idea how is the shape, and how much we have to make bigger, larger, the size of the structure of the word, how we have to write, है ना, so for that I am using these 3 lines, है ना, so just like for b, we have to make the structure b, ठीक है, this one is the structure of b ना, and we have to add over here, ठीक है, again I will write just like this, है ना, this is b, Tibetan b, and over here we are adding ya, the pronunciation of this word will become j, है ना, j, अब देवनागरी के हिसाब से ये हमारा व्य होता है, ठीक है, बट according to Tibetan pronunciation we pronounce these letters j. अब हम लोगों को ये now mostly people will think that why they are making so many cha cha ja, na, so reason is in Tibetan words बहुत ज्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जिनका उच्चारण चा से होता है ना, we have so many words which we have to pronounce as च, तो उसके साथ हमने प्री स्क्रिप्ट भी जोड़ दिया, पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट भी जोड़ दिया, है ना, मोस्टली वन मोर थिंग आई विल टेल यू, है ना, दैट जो मोस्टली यूज जो प्री स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट है ना, पोस्ट स्क्रिप्ट तो चलिए पोस्ट स्क्रिप्ट का यूज होता ही होता है, बट द मोस्टली यूज ऑफ प्री स्क्रिप्ट एंड पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना, they are because of the 3 form of the words, just like when we will learn 3 form of the words, है ना, we say we used to say दुसुम नमशाक, है ना, वो तो बहुत बाद में सिखाया जाता है, बट उस समय जो है कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, फॉर फ्यूचर वी हैव टू ऐड प्री स्क्रिप्ट, है ना, फॉर पास्ट वी हैव टू ऐड बोथ पोस्ट प्री स्क्रिप्ट एंड पोस्ट पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना, एंड फॉर present we have to add only postscript, we have to remove prescript, just these kinds of rules we have in Tibetan 3 forms grammar, grammar of 3 form, है ना, so ऐसी भी चीजें हैं जहां पे सिर्फ postscript and pre by using the postscript and postscript and prescript we cannot make words, we have to add some other words also, है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये पयतच्छा, पयतच्छा, फयतच्छा, बयतज्जा, दे मेड दीज लेटर्स आल्सो, है ना, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, वी विल नॉट फाइंड दीज वर्ड्स इन Tibetan script
है ना. इन Tibetan script we already discussed, है ना, we have 30 consonants and 4 vowels, है ना. We these are just like compound letters uh, which we have to learn later, after we already masters and after we already very used to Tibetan alphabets ना, उसके बाद हम लोगों को ये सिखाया जाता है. ठीक है. ओके. सो द प्लीज रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशंस, है ना. द मोस्टली पीपल जो पहली बार सीख रहे हैं, द हु आर लर्निंग फर्स्ट टाइम ना, उनको क्या होता है कि दे यूज टू प्रोनाउंस जस्ट लाइक क या तक क्या होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, ख या तक क्या होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, बट दे ऑल्सो यूज टू प्रोनाउंस प या तक प्या, but that one is not a real not a proper pronunciation of Tibetan. Okay, so please remember these things. And next one is ma, है ना. माँ के साथ जुड़ता है. ठीक है. So I will not write over here the 3 lines because now you guys will get the idea how to add the yakar, है ना. तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिखूंगा. ठीक है. I will write direct. Just like first we have to make the structure of ma, है ना, and add यकार over here. अब देखिए, जब हम लोग ये लिखते हैं ना प फ ब म, प फ ब म, वो आता है ऊपर वाली लाइन में. मतलब जो हम 3 लाइनें यूज करके सीख रहे थे, उसमें ऊपर वाली 2 लाइनों के बीच में म कंप्लीट होता है ना. जस्ट सो वी हैव टू ऐड. जस्ट लाइक अभी जैसे हम लोग लिख रहे हैं कन्या, कोई वर्ड नहीं होता कन्या करके. अब इसका हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं? वी उच्चारण दिस वन एज न्या. ठीक है. जो हमारे तिब्बतन में ये रहता है, देवनागरी में न्या ना. सो जस्ट लाइक अभी मैं आप लोगों को एक नॉर्मल दिखाऊंगा. इसका वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं रहता, फिर भी आप लोग जस्ट लाइक दिस वर्ड, है ना. अब देखिए यहाँ पे न, अगर हम लोग इसको 3 लाइनों में डिफ्रेंशिएट करें, है ना, तो एक लाइन तो हमारा ये रहेगा ना, ऊपर वाली लाइन. तो बीच वाली लाइन यहाँ तक रहेगी. ठीक है. और लास्ट लाइन जो है हमारी यहाँ तक रहेगी. तो we have to recognize that now when we used to write now we have to use all the lines, है ना. but we have to make structure of ma little smaller than na, है ना, और उसके नीचे यह जोड़ना है. तो ये चीजें आप लोगों को पता चले, दैट्स वाई, है ना, फॉर दिस रीजन, है ना, द स्ट्रक्चर द शेप ऑफ द अल्फाबेट्स, हाउ टू राइट द शेप ऑफ अल्फाबेट्स, है ना. फॉर दिस रीजन आई एम यूजिंग दीज 3 लाइन्स, है ना. सो ये आप लोगों ने दिमाग में रखना. एंड ऑल्सो व्हेन वी लर्न रता, है ना, रकार, उस समय आप लोग फिर से मेरे को ये 3 लाइनें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि रकार का जो तरीका है लिखने का, वो लिखने का तरीका कैसे, कहाँ पे रुकना पड़ेगा, कहाँ पे वो करना पड़ेगा ना, वो हम लोगों को सीखना है. ठीक है. ओके. टिल हियर क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो टुडे वी डिस्कस्ड यकार, है ना. तो यकार का साइन कैसा था? ये है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने का में ऐड किया था. ठीक है. का में ऐड किया, ये हो गया हमारा क्या. आफ्टर दैट वी ऐड इन ख्या. ठीक है. ख्या के लिए हमने यहां से ये वाला यूज किया ख्या, है ना. प्लीज गिव दिस डॉट्स, है ना, व्हेन यू आर राइटिंग दिस वर्ड्स. ठीक है. तो उसके बाद हमने ग लिखा. ठीक है. तो ग में हमने फिर ये यहाँ पे ऐड किया. ठीक है. खा थोड़ा छोटा हो गया, बट आप लोग वो करिएगा. आफ्टर दैट वी यूज टू राइट प. ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा प मेरा, एक मिनट. ओके. आफ्टर दैट वी यूज टू राइट प, है ना. सो यकार विल कम ओवर हियर. फिर फ में भी ऐसा आएगा.
व्य, ज, ये आ गया आपका। these, ये 7 हैं, ठीक है। सो इन तिब्बतन वर्ड्स है ना, सिर्फ यकार जो है इन 7 वर्ड्स के साथ ही जुड़ेगा। जस्ट लाइक इन तिब्बतन pronoun, इन तिब्बतन ग्रामर, इन तिब्बतन लिटरेचर्स है ना, यकार विल बी एड ओनली विद दीज 7 अल्फाबेट्स है ना। सो क, ख, ग, प, फ, ब, म है ना। सो जस्ट लाइक आई विल शेयर द पिक्चर with you also. Wait, huh? Okay. Mm, copy. ओके, ओके है ना। ये मैंने एक अभी पिक्चर शेयर किया हुआ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप लोग चेक करिएगा है ना। तो उसमें देखिए यतक, ठीक है। हम लोग यकार, यकार में अभी तिब्बतन देवनागरी प्रोनाउंसिएशन में बोल रहा था, जैसे य का आकार है ना वो कैसे जुड़ता है, बट इन तिब्बतन वी यूज टू प्रोनाउंस एज यतक है ना। सो फर्स्ट वी हैव यतक। ओके, सो अगेन वी विल मूव। ओके, अभी यहाँ पे इसको ज़्यादा वो मत नहीं करके हम लोग यहाँ पे वो करेंगे। इसका प्रैक्टिस करिए आप लोग ना, क्योंकि अगर मैं आगे का रतक भी आप लोगों को सिखाऊंगा आज ही, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है ना। सो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दीज थिंग्स है ना। एंड जस्ट लाइक बारह खड़ी भी यूज कर सकते हैं हम लोगों इसके साथ है ना। जैसे क, क के साथ यकार ऐड किया, की है ना। ख, ख के साथ यकार ऐड किया, यकार के साथ ऊ यूज कर दिया, क्यू। ग के साथ यकार ऐड किया, ठीक है। तो गे, एंड प के साथ यकार ऐड किया है ना, और यहाँ पे ओ लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, चो है ना। तो इसका उच्चारण हो जाएगा हमारा की, क्यू। द उच्चार, द प्रोनाउंसिएशन है ना, गे और चो, ठीक है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस लाइक दिस है ना। एंड yes, from tomorrow, I will not take this much time. We will start our class proper from 7 to 8 है ना। uh, and tomorrow is Losar. Happy Losar to everyone. Thank you, sir. Happy hello, sir. जी, Sir, तो I have यहाँ, one sir. question. हाँ Yeah. So when we say pa plus ya, हाँ paya, हाँ and it's pronounced as cha, हाँ and हाँ, then we have like cha, cha, ja, nya. यस यस। So is there anything like for ka plus ya, kya? So do we have Tibet pronunciation, or we just say kya, Yeah, yeah. kya? Yeah. That's why I'm saying na, for these 3 letters, na, the pronunciation will become same as Devanagari. If we add Okay. ya with ka, we have to pronounce kya. If we have to Yeah. add ya with kha, we have to pronounce kya. है ना? With ga Uh, also, we have to pronounce gya. I will show you an uh, example ना. Uh, अ- no, I got it, sir. I got it. Means I जैसे, understood it. जी जी, जब हम आगे जाएंगे, जब हम लोग कारक सीखेंगे ना, तो कारक में एक वर्ड आएगा ऐसा, ये, ठीक है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम गी। इसका उच्चारण ऐसे किया जाएगा। Okay, sir. Yeah. जी जी। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर वर्ड है ना, जैसे मैंने अभी कहा था ना, बुद्धा। फॉर बुद्धा वी यूज टू प्रोनाउंस, एक मिनट में वो नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको है ना। जस्ट लाइक संग,
ये देखिए, है ना। तो जो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना, सो वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस दिस वन, है ना। सो वी विल प्रोनाउंस दिस वन एज संग। एंड ऑल्सो आई टोल्ड दैट जो ऊपर टॉप में रहता है ना, हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करते, इसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो दिस वन विल बी प्रोनाउंस एज GYAS, है ना, संगस। अगर हिंदी में लिखूं, संग यस, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। एंड जस्ट लाइक जो प फ ब वाला था ना, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको। तो जैसे ब का एग्जांपल रहता है, ठीक है, द एग्जांपल ऑफ ब ये था ज, एंड विद दैट ब, है ना, जावा। जावा का मीनिंग होता है वर्क। जैसे जावा इज अ रिस्पेक्टेड वर्ड, है ना, और जो लिखने में ज्यादा प्रयोग होता है, ऐसे ही हम लोग दूसरा वर्ड होता है लस्का, वर्क के लिए। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, मतलब मीनिंग बताने के लिए, ठीक है। इन दोनों का वर्ड ये जैसे लस्का हो गया, ठीक है, या फिर का हटा देंगे भी, लस अकेले भी रखेंगे तो उसका भी मीनिंग वही रहता। सो ओवर हियर, है ना, द मीनिंग ऑफ लस्का इज ऑल्सो वर्क, जावा इज ऑल्सो वर्क, है ना, जावा। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पे जैसे ब के साथ यह यूज किया, तो इसका उच्चारण हम लोगों ने क्या किया, जावा, जाबा। अब ये जो भा का भी प्रोनाउंसिएशन है ना, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब इज प्रोनाउंस डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स, है ना, जस्ट लाइक इन Lhasa they will pronounce this one Java, this one will become wa, they will pronounce this one as a wa, but in Amdo, in Khampa, है ना, they pronounce this one Java, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बा के साथ या जुड़ा तो इसका प्रोनाउंसिएशन जा किया, यहाँ पे ग के साथ या जुड़ा उन्होंने गया किया, तो ये डिफरेंट है, ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं। एंड अभी मैं जो वीडियोस है वो उसका मैंने वो लिया है, ले लिया है, तो मैं आप लोगों को वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए, तो मिलते हैं कल। आज यहाँ पे रुकते हैं। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank जी, you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. जी।